Jai Swaminarayan. Good all of you. Today I am going to begin chapter number 7, Packing. This chapter is written by Jerome K. Jerome. Let's know about the author. Jerome Klapka Jerome, born on 2nd May 1859 and was passed away in 14th June 1927, was an English writer and humorist, best known for the comic travelogue Three Men in a Boat, which is published in 1889. Other works include the essay collections Idle Thoughts of an Idle Fellow in 1886 and Second Thoughts of an Idle Fellow, Three Men on the Boomel, a sequel to Three Men in a Boat, and several other novels. And these incidents are taken from the Three Men in a Boat. Title: Packing. One idea occurred in our mind that packing means when we pack something when we are going on the trip or outside from our house. So in this chapter, very humorous incidents are explained very well by author. So three main characters here: Jerome, author, Harris and George, three friends, and Jerome K. Jerome, the author, narrating this story. So this is a very humorous story. So let's start with it. I said I had packed. I said I had packed means I said means author. Author खुद कहते हैं that I said I had packed. I packed everything. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things there are. So author said very proudly. Pride myself on means I am proud of. So author says that packing is one of his hobby. वो कुछ करे या ना करे लेकिन पैकिंग में ऑथर जो है जेरोम के जेरोम वो बहुत माहिर थे पैकिंग करने के लिए, जो कोई और नहीं कर सकता, और वो खुद पे बहुत प्राउड फील करते थे. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. And author said that I am packing everything and he said to his friends, two friends, George and Harris, said that I can pack better than you and leave these whole things entirely on me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. Here uncanny means strange or weird. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his leg on the table. So what happened? Author said them that I packed everything, but his friends George and Harris listened it, and it is strange for author that George spread himself over the easy chair and he feels relaxed, and Harris cocked his leg. Here cocked his leg means bent the legs on the knee as he sat, and he sat down on sofa. So these things are very uncanny, very strange for author. This way hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions, I pushing them aside every now and then with, "Oh, you. Here, let me do it. There you are, simple enough. Really teaching them, as you might say." Author thinks that here intended means thought. So author thought that I should boss the job. Here, boss the job means he supervised these things, packing. I will boss the job that Harris and George should potter about under my direction. Potter about means do some unimportant things. That author give them instructions and they packed it. So author thought these things. I pushing them aside every now and then with, "Oh, you, here, let me do it." But they both are sitting beside the author and author packed everything. There you are, simple enough, really teaching them, as you might say. They're taking it in a way that did irritated me. And they sit beside the author, they doing nothing. So author feels irritating for them because they do unimportant things.
There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. Author said that कि अगर मैं काम करता हूँ और कोई मेरे आजू बाजू खड़ा रहता है या फिर बैठा रहता है, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स करता है, तो ऑथर कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेट फील होता है. एंड दिस थिंग्स मेड मी एंग्री. आई लिव्ड विथ अ मैन once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. Here author give example of one man, that there is one man once he used to make me mad that way. That he felt author very irritating. Why he felt irritating? Because he loll on the sofa. Loll on the sofa means to recline or lean in a relaxed manner. So when author doing some work, that person sit or stand lazily beside the author. He said it did him real good to look on at me messing about. Now I am not like that. I can sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. ऑथर कहते हैं कि अगर कोई काम कर रहा हो, हियर स्लेविंग मीन्स वर्किंग एंड सुपरिटेंड मीन्स सुपरविजन एंड मैसिंग मीन्स क्रिएटिंग कंफ्यूजन और वेस्ट टाइम डूइंग समथिंग विदाउट अ पर्टिकुलर मैनर. सो ऑथर कहते हैं कि अगर कोई काम कर रहा हो और मैं ऐसे ही खड़ा रहूं, ये चीज मुझको अच्छी लगती नहीं है. अगर कोई काम करता हो तो मैं उसको सुपरवाइज करता हूं और फिर मैं उनको कहता हूं कि क्या करना है आगे, ये मुझे बताओ. ये मेरा बहुत एनर्जेटिक नेचर है. एनर्जेटिक नेचर मीन्स ऑथर इज वेरी इंथुजियास्टिक टू डूइंग वर्क एंड आई कांट हेल्प इट. और वो बोलते हैं कि ये जो मेरा नेचर है उस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता. मेरा नेचर ही इतना हेल्पिंग है, वर्किंग है. However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. ऑथर कहते हैं कि मुझे लगता था कि ये काम बहुत इजी हो जाएगा पैकिंग का, लेकिन मैंने जो सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा टाइम इसमें लग गया था. और ऑथर ने फिर सब कुछ पैक किया एट लास्ट में और फिर स्ट्रैप्ड मीन्स क्लोज्ड इट और टाइड विथ स्टेप्स. सो ऑथर ने फिर उसको क्लोज कर दिया, स्ट्रैप्ड कर दिया बैग को. And you going to put the boots in? said Harris. And at last, finally Harris said that, and you going to put the boots in? तुम इसमें shoes नहीं रखोगे? And I looked round and round. I had forgotten them. And author says that उन्होंने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उन्हें तब पता चला, बैग पूरी पैक हो चुकी थी, तब उन्हें पता चला कि मैं तो इसमें शूज रखना ही भूल गया हूँ. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I had got the bag shot and strapped. Of course, and George laughed. One of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. ऑथर कहते हैं यहाँ पे कि उनका जो फ्रेंड है हैरिश, वो एट लास्ट तक कुछ भी नहीं बोला. जब तक ऑथर ने पैक कर दी उनकी बैग, तब तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला. और लास्ट में उन्होंने कहा कि तुम उसमें शूज नहीं रखोगे. यू फॉरगॉट टू पुट शूज इन द बैग. और ये कहते कहते जॉर्ज जो है वो बहुत हंस पड़ा. ही लाफ्ड एट ऑथर. और ये चीज जो है ऑथर को वो बहुत ही इरिटेटिंग सी लगी और ये सेंसलेस स्माइल उन्हें लगी. और यही चीज थी ऑथर को जो पागल बना रही थी. आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी. हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. लास्ट में जब उन्होंने शूज पैक करने के लिए भी उन्होंने बैग ओपन की, फिर से क्लोज की बैग को. फिर ऑथर को एक आइडिया आया, शूज तो मैंने अंदर रख लिए हैं, लेकिन क्या मैंने अपना टूथब्रश लिया है? तो ये आइडिया जो है वो एक हॉरिबल आइडिया, हियर इट इज अ फनी थिंग. तो उनके माइंड में ये आइडिया आया. फिर क्या किया ऑथर ने? ऑथर सेड आई डोंट नो हाउ इट इज बट आई नेवर डू नो
वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। ऑथर कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया है। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉर्न्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। ऑथर कहते हैं हियर हॉर्न्स मीन्स हियर टू रिपीटेडली गिव ट्रबल और सैड और अपसेट, और मिजरी मीन्स ट्रबल। सो ऑथर कहते हैं कि ये टूथब्रश जो है वो बहुत बड़ी मिजरी है मेरे लिए। वाई? बिकॉज वो हर बार ट्रैवलिंग के टाइम पे इसे भूल जाते हैं। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ द बेड एंड हॉन्ट फॉर इट। ऑथर जब भी ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो वहां पे वो ही जस्ट थिंक एंड वेक अप फ्रॉम द बेड and hunt for the toothbrush, means search for the toothbrush. And in the morning I packed it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. Author said that हमें लगता है कि हम अपना टूथब्रश लास्ट में रख देंगे क्योंकि मॉर्निंग में ये यूज तो होगा ही, इसलिए ऑथर कहते हैं कि मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाता हूँ, ऑलवेज आई फॉरगेट इट। और एट लास्ट जब मुझे लास्ट मिनट पे याद आता है मेरा टूथब्रश, और फिर मैं अपस्टेयर्स जाता हूँ और जल्दी से लास्ट मोमेंट पे उसको कैरी करके आता हूँ हैंकरचीफ में, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन जब भी जाते और कहीं पे भी जर्नी पे जाते तो वो फोल्ड करके हैंकरचीफ में फोल्ड करके वो टूथब्रश उनके हाथों में रख के ले जाते हैं। तो हियर वी थिंक्स दैट इट इज अ वेरी ह्यूमरस थिंग, वेरी फनी थिंग। टूथब्रश ही यूज्ड इट वेरी ह्यूमरसली because author forget these things always when he is going to the traveling. Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created. और वो कहते हैं कि मैंने सारी चीजें रख दी थी, लेकिन जब मैंने अपनी बैग खोली, here rummaged means searched in a hurried or careless way, or every mortal things means every ordinary thing. So author said that कि जब भी उन्होंने सब कुछ पैक कर दिया था, सब कुछ कंप्लीटली पैक हो गया था, लेकिन जब वो टूथब्रश लेने के लिए उन्होंने हर बार वो टूथब्रश जो ढूंढने के लिए, फिर बूट्स रखने के लिए, वो सब रखने के लिए उन्होंने सर्च किया हरीली एंड इन अ केयरलेस वे, उन्होंने बैग में सब कुछ सर्च किया। इसकी वजह से क्या हो गया था, सब कुछ जो है वो सब कुछ उलट सुलट हो गया था। द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड मीन्स जैसे वर्ल्ड क्रिएट हुआ हो तब की चीजें यहाँ पे पड़ी रही हो, ऐसा उन्हें लग रहा था। एंड व्हेन केओस reigned, of course I found George and Harry's 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. Author said that I resigned means I ruled. So author कहते हैं कि ये बहुत बड़ा केओस, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मेरे लिए। मैंने बहुत मेरा टूथब्रश ढूंढा। जॉर्ज और हैरिस का जो टूथब्रश है वो मुझे 18 टाइम्स मिला। कैसे 18 टाइम्स? तो उन्होंने बार बार जब चीजें रखने के लिए और चीजें सर्च करने के लिए, टूथब्रश सर्च करने के लिए यहाँ से वहां चीजें रखी थी, तो 18 टाइम्स जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश जो है वो उन्हें मिल चुका था, लेकिन उनका मिला नहीं। उन्होंने फिर से सब कुछ बाहर निकाला, फिर से बैग पैक की, कुछ भी उन्हें नहीं मिला। फिर क्या हुआ, लास्ट में उन्होंने देखा कि मेरा टूथब्रश जो है वो तो बूट के अंदर है, शूज के अंदर है, और फिर उन्होंने निकाला और फिर से पूरी बैग रिपैक्ड की। When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it. So author said that कि जब जॉर्ज ने कहा कि क्या तुमने सोप अंदर रखा है, तब ऑथर ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है सोप अंदर हो या ना हो। ऐसा कह के ऑथर जो है उन्होंने बैग को स्ट्रैप से पूरा बांध लिया और पूरा शट डाउन कर लिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट एंड हैड टू रीओपन इट। फिर से ऑथर ने जब सब कुछ क्लोज कर दिया था, पूरा बैग बांध दिया था, तब ऑथर को पता चला कि क्या मैंने अपना स्पेक्टिकल्स जो है वो अंदर रखा है या नहीं।
या फिर उन्हें पता चला कि मैंने अपना स्पेक्टेकल्स जो है वो अंदर रख दिया है एंड हैड टू रीओपन इट, और उन्हें फिर से वो बैग ओपन करनी पड़ी. इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM and then there remained the hampers to do. Yes, hampers means baskets. Baskets used to carry food or utensils or etc. things. So author said that at last 10:05 PM जो हुआ था तब उनकी बैग पैक हुई. फिर उन्हें याद आया कि मुझे तो अभी हैम्पर्स में मीन्स बास्केट में भी बहुत सारी चीजें रखनी है. हैरिस सेड दैट वी शुड बी wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. Then George and Harris both says that अभी हमारी जर्नी में सिर्फ 12 आवर्स बाकी रहे हैं और हैम्पर भी पैक करना है. तो उन्होंने कहा ऑथर जेरोम को कहा कि तुम अब बैठो, अब मैं और हैरिस मीन्स जॉर्ज कहता है कि मैं और हैरिस अब सब कुछ पैक कर लेंगे. और ऑथर को अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो वो चीज पे अग्री हो गए और वो वहां पे बैठ गए, टेबल के ऊपर बैठ गए. दे बिगन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, evidently intending to show me how to do it. I made no comment, I only waited. So here spirit means to be cheerful और evidently means clearly और obviously. So author कहते हैं कि वो लोग जो है वो बहुत cheerful हो गए थे, बहुत ही exciting हो गए थे और वो लोग मुझे बताना चाहते हैं कि कैसे पैकिंग होती है. यहाँ पे intending means he thinks that, और वो ऑथर को बताना चाहते हैं कि पैकिंग जो है वो पूरी किस तरीके से होती है. ऑथर ने कहा कि मैंने कोई भी कमेंट नहीं की, मैंने कोई भी रिमार्क नहीं दिया. आई ओनली वेटेड फॉर द टाइम. विथ द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting. Here exception means a person or thing that does not follow the general rule. So here author says that there are a number of things lying one upon the other. Which things? Author said that हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. उनके मुताबिक हैरिस जो है वो सबसे वर्स्ट, उनका जो पैकिंग स्टाइल था वो सबसे बुरा था. और वो बोलते हैं कि जब वो हैम्पर में सब कुछ पैक कर रहे थे, वो सब कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो वो कप थी, केटल, बॉटल, जार्स, पाइस थी, स्टोव था, केक्स थी और टोमेटो, वो सब चीजें थी. वो सब चीजें जो है दिस इज द नंबर ऑफ थिंग्स लाइंग वन अपॉन दी अदर. और ये चीज जो है वो ऑथर को बहुत एक्साइटिंग कर रही थी. इट डिड. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. उन्होंने, हैरिस और जॉर्ज ने पैकिंग तो शुरू की हैम्पर में. फिर क्या किया उन्होंने स्टार्ट किया कप को ब्रेक करके. पहले तो कप ब्रेक हुआ एंड इट इज अ फर्स्ट थिंग. और फिर उन्होंने अलग अलग चीजें जो थी वो पैक करनी शुरू की और ये बहुत इंटरेस्टिंग था ऑथर के लिए. देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ द टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विथ अ टीस्पून. अब क्या हुआ? हियर स्क्वैश्ड मीन्स क्रश और स्क्वीज समथिंग विथ फोर्स सो दैट इट बिकम्स फ्लैट, सॉफ्ट और आउट ऑफ शेप. तो हैरिस ने जो है वो टोमेटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम का जो डिब्बा था वो रख दिया और टोमेटो जो थे वो सब कुछ पिचक गए. और फिर उन्होंने वो टोमेटो का जो पिचक गया था टोमेटो, वो सब कुछ उन्हें टीस्पून से बाहर निकालना पड़ा क्योंकि उन्होंने हल्की चीज के ऊपर भारी चीज रख दी थी जिसकी वजह से ये सब हो गया था. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न एंड ही टोड ऑन द बटर. I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. Here, toed on means stepped on. अब क्या हुआ कि जॉर्ज जो है वो मुड़ा और उसका जो पैर है वो बटर के ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से ये बटर जो है वो उसके पैरों में लग गया.
ये सब ऑथर जो है वो टेबल की एज पे मीन्स किनारे पे बैठ के सब कुछ देख रहे थे कि क्या हो रहा है. It irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them. And they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. ऑथर कहते हैं कि पूरा पैकिंग जो हैम्पर्ड में करना था उन्होंने क्या किया. ऑथर देख रहे थे सब कुछ हो रहा है, जॉर्ज और हैरिस सब कुछ कर रहे थे. फिर ऑथर ने देखा कि ये चीज जो हुई, बटर के ऊपर उनका स्टेप पड़ गया जॉर्ज का, ये चीज बहुत इरिटेटिंग थी. फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और जॉर्ज और हैरिस बहुत नर्वस फील कर रहे थे और एक्साइटेड भी थे थोड़े बहुत. एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, वो थिंग्स पे बैठ जाते थे या फिर थिंग्स जो है वो कहीं पे भी रख देते थे, उनके पीछे रख देते थे और फिर ढूंढते थे कि वो चीज कहाँ है. फिर उन्होंने क्या किया कि जो पाई है वो पैक करनी शुरू की और पाई को लास्ट में रखा और उनके ऊपर उन्होंने हैवी थिंग रख दी, जिसकी वजह से जो वो पाइस थी वो पूरी स्मैश हो गई थी. सो ये सारी चीजें, ये सारा जो इंसिडेंट्स है वो सारे इंसिडेंट्स बन रहे थे. दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर आई नेवर शो 2 men डू मोर विथ 2 pans वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड. ऑथर कहते हैं कि वो सॉल्ट की जो डिब्बी थी वो भी पूरी नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से पूरा जो सामान था, पूरा जो हैम्पर्ड में सामान था, वो पूरा सामान जो है वो नमक वाला हो गया था. और ऑथर कहते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा था कि ये जो 2 pans, pans मीन्स इट इज अ वन काइंड ऑफ करेंसी. जैसे हमारे यहाँ पैसा या रुपया होता है, यहाँ वहां पे पैंस होता है. तो ऑथर कहते हैं कि इसकी वर्थ, कीमत जो थी वो 2 pans थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीज मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी देखी हो. आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन अ केटल. और वो जो बटर था पूरा वो जॉर्ज के स्लीपर पे लग चुका था और फिर उन्होंने ट्राई किया कि ये जो चीज की जो पूरा टीन है, वो चीज का टीन वो जो है वो केटल में रखने के लिए उन्होंने ट्राई किया. इट वुडंट गो इन एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट. फिर क्या हुआ, वो टीन में जा तो नहीं रहा था, लेकिन अगर वो अंदर चला भी जाता तो वो बाहर निकल नहीं पाता. They did scrape it out at last and put it down on a chair and Harry sat on it and it stuck to him and they went looking for it all over the room. Here, scrap means drag or pull. So, author कह रहे हैं कि फिर उन्होंने क्या है, वो जो टीन था, वो जो पैकिंग था पूरा बटर का, वो एक चेयर पे रख दिया और उस चेयर पे हैरिस जो है वो बैठ गया. और ये जो पूरा बटर था, बटर का पैकिंग था, वो पैकिंग जो है उसकी पैंट पे मीन्स उसके पिछले हिस्से पे लग गया और वो यहाँ वहां पूरा बटर का जो टीन है वो यहाँ वहां पे ढूंढ रहे थे. I will take my oath I put it down on that chair, said George, starting at the empty seat. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. हैरिस ने कहा कि मैंने वो नहीं देखा था. जॉर्ज ने कहा कि वो जो है, वो जो बटर का वो पूरा सा पैक था वो मैंने चेयर पे रखा था और अभी वो चेयर एम्प्टी है, तो वो गया तो कहाँ गया. Then they started round the room again looking for it and then they met again in the center and stared at one another. उन्होंने, हैरिस और जॉर्ज ने सब कुछ ढूंढा लेकिन उन्हें बटर का जो टीन था वो नहीं मिला. फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते रहे. Most extraordinary thing I ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. Then George got round at the back of Harris and saw it. Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. So वो चीज जो थी वो ऐसे गुम हो गई और कितनी मिस्टीरियस है, हैरिस ने कहा. और जॉर्ज ने कहा कि वो कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग थी, चीज गुम हो गई, मुझे पता भी नहीं चला. फिर जॉर्ज ने हैरिस के पीछे देखा और बोला एंग्रीली, इंडिजनेंटली मीन्स एंग्रीली, वो एकदम एंग्री हो गया था हैरिस पे. और फिर उसने कहा वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड, स्टैंड स्टिल कांट यू, रोल्ड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम. उसने देखा कि वो जो डिब्बा था, वो जो पैक था पूरा बटर का, वो हैरिस के पीछे लग चुका था
और फिर उसने कहा कि खड़े रहो, तुम एक जगह नहीं खड़े रह सकते, जॉर्ज ने गुस्से से बोला। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। फिर उन्होंने वो बटर का टीन लिया और फिर उसे टी पॉट में रख दिया। Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. Here, be sworn at means get scolded. तो Montmorency जो है वो एक कुत्ता था जिसका नाम था ये, और वो भी ये सब चीजें देख रहा था ऑफ कोर्स। और ये Montmorency जो है उसका एम्बिशन क्या था कि सब चीजें जो है वो उन पे नजर रखना, मीन्स उलट सुलट कर देना, और फिर उनको सब स्कोल्ड करते थे। इफ ही कैन स्विम इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, देन ही फील्स दिस डे हैज नॉट बीन वेस्टेड। हियर स्विम मीन्स टू रिंगल और ट्विस्ट one's body and nuisance means to cause inconvenience or annoyed. And Montmorency जो है वो उसका एक एम्बिशन रहता था लाइफ में कि वो सब चीजें उलट सुलट कर देता था, जिसकी वजह से वो उसे स्कोल्ड करते रहते थे। उसने क्या किया, सब चीजें जो है वो यहाँ पे उलट सुलट कर दी और फिर उसको रिगल कर दिया और ट्विस्ट कर दिया, और फिर उसने उस पे जो है जॉर्ज और हैरिस जो है वो बहुत गुस्सा हो गए उस पे, क्योंकि उसने ये सब चीजें की थी। और न्यूशंस हियर मीन्स एनोयंस, मीन्स पीपल जो है मॉन्टमोरेंसी पर उसी तरह से एनॉय हो जाते थे। और उसने क्या की कि वो सारी जो चीजें हैं हैरिस और जॉर्ज ने, जब उन्होंने देखा कि मॉन्टमोरेंसी जो हैम्पर में घुस गया है और उन्होंने देखा जॉर्ज और हैरिस ने सब कुछ, और उन्होंने जो चीजें थी हैम्पर की बाहर पड़ी हुई वो सब मॉन्टमोरेंसी पे फेंकी। Then he feels this day has not been wasted. मॉन्टमोरेंसी सोचता था कि ये डे है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. Here, curse means scold, conceit means here his pride in himself. मॉन्टमोरेंसी सोचता था कि वो कोई भी डे वेस्ट नहीं उसका होना चाहिए, और वो जो सारी चीजें वो देख रहा था कई तरीके से, तो वो उस पर प्राइड फील कर रहा था कि मैंने जो मेरा एम था वो फुलफिल कर दिया, सब कुछ यहाँ वहां करके। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स। फिर क्या हुआ, यहाँ पे आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि कैसे जॉर्ज जो है वो मॉन्टमोरेंसी पर बहुत गुस्सा हो गया है, और वो उसको फ्राइंग पैन जो है वो लेके उसने उनको मॉन्टमोरेंसी को मारा। देन ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट व्हाटएवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एवरीथिंग, इट वाज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड। मॉन्टमोरेंसी जो है वो देख रहा था कि जॉर्ज और हैरिस सब कुछ पैक कर रहे थे, और उन्होंने कितनी मेहनत करके सब कुछ पैक किया था, और जॉर्ज और हैरिस जो है उन्होंने सब कुछ कंप्लीटली पैक कर दिया था। तो जब भी जॉर्ज कुछ भी चीज लेने के लिए उसका हाथ बढ़ाता था, तो मॉन्टमोरेंसी की जो कोल्ड डैम्प नोज जो है, वेट डैम्प मीन्स वेट जो नोज है वो उसके हाथों में आ जाती थी, क्योंकि मॉन्टमोरेंसी को लगता था कि वो मेरे नोज को टच करना चाहता है। He put his leg into the charm and he worried the teaspoons, and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. तो यहाँ पे क्या हुआ कि मॉन्टमोरेंसी प्रिटेंड कर रहा था। प्रिटेंड मीन्स टू बिहेव एज इफ समथिंग इज ट्रू व्हेन यू नो दैट इट इज नॉट। मॉन्टमोरेंसी सब कुछ जानता था, लेकिन उसने क्या किया कि वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था। उसने वहां पे लेमन्स देखे, और एक तो उसने जैम में उसका पैर रख दिया, पांव रख दिया, और फिर वो टीस्पून ढूंढने लग गया, और फिर उसने क्या किया कि वो रैट्स समझ बैठा, लेमन्स जो है उन्हें रैट्स समझ बैठा, और उसने जो 3 लेमन्स थे वो पूरे स्क्वीज कर दिए, उसको निचोड़ दिया। और फिर ये सब देख के हैरिस से रहा नहीं गया, और उसने वो फ्राइंग पैन उसके हाथों में ली और उसको मारने के लिए दौड़ा, उसे मारा।
Harry said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural, original scene that it born in him that makes him to do things like that. Here born in him means by birth. हैरिस सोचता था कि जॉर्ज जो है वो उसको एनकरेज कर रहा है मॉन्टमोरेंसी को, लेकिन वो बताता है कि ये सब डॉग्स जो होते हैं उनमें एक नेचुरल थिंग होती है. वो उसको एनकरेज नहीं कर रहा था, लेकिन ये नेचुरल थिंग्स है, ये एक ओरिजिनल सीन है. उनको बाय बॉर्न ये सारी चीजें जो है वो करनी आती ही है. The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. लास्ट में 12:50 को ये पूरा हैम्पर जो है वो पैक हुआ और हैरिस जो है वो हैम्पर पे बैठ गया और फिर वो सोचता है कि कोई चीज जो है वो टूटी ना हो तो अच्छा है. जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, व्हिच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कंफर्ट हिम. हियर रिफ्लेक्शन मीन्स थॉट. सो हैरिस कहता है कि कोई चीज टूटी ना हो, तब जॉर्ज क्या कहता है? जॉर्ज कहता है कि अगर कोई चीज टूटी भी हो तो टूट जाने दो, कोई परवाह नहीं है. ये चीज सुन के हैरिस जो है वो बहुत कंफर्ट, बहुत रिलैक्स फील कर रहा था उस टाइम पे. ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड. वी वर ऑल रेडी फॉर बेड. हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट. वी वेंट अपस्टेयर्स. सो सारी चीजें पैक हो गई और लास्ट में हैरिस ने कहा कि अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं रेडी हूं सोने के लिए. तब ऑथर ने भी कहा, जेरोम ने और जॉर्ज ने, उन्होंने कहा कि हम भी रेडी है सोने के लिए. और हैरिस जो है वो उसने कहा कि बहुत नाइट हो चुकी है और वो तीनों जो है वो अपस्टेयर्स ऊपर चले गए. वी टोस्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी. ही सेड, डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड जॉर्ज? हियर जे मीन्स जेरोम, द ऑथर. सो उन्होंने टॉस किया. हियर टॉस मीन्स थ्रो समथिंग समवेयर लाइटली और कैजुअली. तो उन्होंने टॉस किया कि बेड पे कौन कहाँ पे सोएगा और हैरिस जो है उसने टॉस किया और जॉर्ज को उसके साथ ही सोना पड़ा. और फिर उन्होंने पूछा कि जॉर्ज, जेरोम, तुम कहाँ पे सोओगे, इनसाइड और आउटसाइड ऑन द बेड? आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड. हैरिस सेड इट वॉज ऑड. फिर ऑथर ने कहा, जेरोम ने कहा कि मुझे इनसाइड द बेड में बहुत अच्छी नींद आती है. हैरिस ने कहा ये बहुत ऑड थिंग है. ऑड मीन्स हियर स्ट्रेंज. इट इज अ लिटिल बिट स्ट्रेंज थिंग. जॉर्ज सेड, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज? हैरिस सेड 7. आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स. फिर जॉर्ज ने कहा कि मैं आपको, तुम दोनों को कब जगाऊं? तब हैरिस ने कहा कि 7 o'clock. और जेरोम जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 6 बजे उठा देना. वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स टू समवन. हैरिस एंड आई हैड अ बीट ऑफ अ रो ओवर इट, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30. उन दोनों में इस बात पे अ बीट ऑफ अ रो ओवर इट मीन्स उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई और फिर एट लास्ट दोनों के बीच जब आर्ग्यूमेंट खत्म हुई तब उन्होंने एक फिक्स टाइम उन्होंने डिसाइड किया. दैट वी वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड. उन दोनों ने कहा, हैरिस ने और ऑथर ने, कि हमें 6:30 पे उठा देना. जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम. सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड अवरसेल्व्स. हियर टम्बल मीन्स टू फॉल क्विकली एंड विदाउट कंट्रोल. तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जॉर्ज को कहा कि हमें 6:30 बजे उठा देना. तब जेरोम और हैरिस ने दोनों ने देखा कि जॉर्ज जो है वो सो रहा है और उन्होंने वो टम्बल, एक टब था, वो वहां पे पानी भर के रख दिया, ठंडा पानी भर के उसके बाजू में रख दिया, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि अगर वो उठेगा सुबह तो वो ही टम्बल्ड into it and getting out in the morning, तो वो उसमें गिर जाएगा. और ये बहुत फनी चीज है, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि तीनों जो फ्रेंड्स जो है, जेरोम, हैरिस और जॉर्ज, वो बहुत नॉटी थे. तीनों बहुत नॉटी थे और वो लोग जो है ये जो हमारा पूरा लेसन है उसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो जर्नी दिखाई गई है उन लोगों की,
कि वो ट्रैवलिंग के टाइम पे पैकिंग शुरू करते हैं और ये पैकिंग करते वक्त उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, विच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स अकर्ड इन दिस पैकिंग। सो ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे हैरिस और जॉर्ज जो है वो कैसी फनी थिंग्स करते हैं हैम्पर पैक करने में। वो जो कुत्ता होता है मॉन्टमोरेंसी, उसका एम्बिशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो क्या करता है और फिर क्या सब कुछ होता है। क्या आपको लगता है कि पैकिंग कंप्लीटली उनका हुआ होगा? और हम देखते भी है कि पैकिंग करते समय उन्होंने कितनी बार बैग को ओपन किया एंड देन दे क्लोज्ड द बैग। तो उन्होंने कितने टाइम कुछ चीज रखनी भूल गए थे, कुछ चीजें उन्होंने रखी थी और वो सब पैक करने में उन्हें कितना टाइम लग गया। और एट लास्ट तीनों जो है उन्होंने बहुत मस्ती। एंड हियर आवर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।